ओसु नहीं, मैं जापानी से बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ग्रीडिंग इन अ कराटे फैशन. वाई कराटे? बिकॉज रिसेंटली मैंने ये सीरीज ख़त्म करी है, कराटे किड. नो 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 नो, कोबरा काय. कोबरा काय के 3 सीजन आ चुके हैं एंड दिस इज बेसिकली ऑन द सेम प्लॉट जो हमने 80s में कराटे किड मूवी देखी थी. कराटे किड आपको याद होगा, इफ यू आर एन 80s किड आपको कराटे किड जरूर याद होगा. कराटे किड के इनफैक्ट आई गेस 4 मूवीज बन चुकी हैं. 3 मूवीज इन द एंटायर 80s and in the initial 90s I guess the last Karate Kid movie was made. Keeping in perspective of the original actors, इसकी फर्स्ट मूवी की जो एकदम जो मूवी याद है मुझे, you know, that is when I say Karate Kid movie I mean that movie, the early 80s movie. उस मूवी का रीमेक हुआ था रिसेंटली, जिसमें जेडन स्मिथ ने रोल किया था ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. The kid, exactly the kid, and Jackie Chan played the sensei, the master. So अगर आपको याद होगा, so कराटे किड जो ओरिजिनल कराटे किड था, मेन प्रोटैगनिस्ट है डैनियल लरूसो. उसको जॉनी लॉरेंस किस तरह से बुली करते हैं, जॉनी लॉरेंस के ग्रुप को डैनियल लरूसो को बुली किया जाता है, एंड दैट्स हाउ उनके लाइफ में सेंसे मियागी आते हैं, एंड he teaches him the art of self-defense. And over the movie, he gradually understands that martial arts, especially karate, is not just a technique to fight or a technique to self-defense, but it's also to discover yourself. So he discovers not just the art, but himself through the process. And it's a beautiful movie. I would recommend you to watch the original Karate Kid movie. Because you know, ये complete Cobra Kai series it's like a nostalgia अगर आपने वो ओरिजिनल कराटे किड मूवी देखी होगी. well, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो और अगर आपने वो जेडन स्मिथ वाली मूवी देखी है, then it's also fine because the plot is same. मेरे अपने nostalgic factors हैं, and I guess every 80s kids would or 90s kid would probably be associated himself with the original Karate Kid movie, the 80s Karate Kid movie. 80s was beautiful, you know. I guess if I could live again, I would probably be loves to enjoy 80s. I can't say once more because I was born in 80s, but yeah, I would definitely would love to live my youth in 80s because that was the era when, you know, rock music was popular, rock music was coming in, the discotheque era was coming in. They were fantastic music. Highway on the Danger Zone, remember? Top Gun का एक गाना था, Top Gun anthem का, Highway on the Danger Zone. Beautiful movie, right? Beautiful song. We all loved that. Queen, Scorpion, yeah, we all loved that. 80s was the era, I guess. I would love to live that era once again. So yeah, I have my own nostalgic factor that मैं उस movie को, the original Karate Kid movie 80s का, I would call that the OG Karate Kid movie. अगर आपने वो मूवी नहीं देखी, अगर आपने वो जेडन स्मिथ वाली मूवी देखी है, then it's also fine, like I said, because the concept is clear. अगर आपने वो मूवी भी नहीं देखी है, तब भी क्या आप ये कोबरा काय के सीजन्स देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं. आई वुड से गो अहेड, डू इट. बिकॉज अभी मैं जो जिस बारे में बात करूँगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट इज कोबरा काय ऑल अबाउट. सो वेरी क्विकली, what happened in Karate Kid? Like I said, Daniel LaRusso, the protagonist, a young teenager guy, he was being bullied by Johnny Lawrence gang. Johnny Lawrence was the bully guy out there. इनके लाइफ में सेंसे मियाजी आते हैं, मियागी, however you want to call it, and Daniel LaRusso को ट्रेन करते हैं मार्शल आर्ट्स. Daniel LaRusso through the martial arts discovers himself, gets in touch with his life, gets in touch with what exactly is martial arts. And martial art doesn't mean कि, you know, जाके एकदम तोड़ दो, लड़ाई करो. No, it is an art to discover yourself and learn to respect yourself along with the other person. And किस तरह से karate, the art of self-defense, the art of, you know, those kicks and punches makes you calmer. And I do relate to it because I remember in 90s, I guess, मुझे भी taekwondo classes join कराया गया था, and
मेरे भाई को भी कराटे क्लासेस ज्वाइन कराया गया था. सो आई गेस folks like me would understand that how martial arts is important not just for fitness, not just for self-defense, but also it's important on a spiritual sense, that it does helps you connect to your inner self and makes you feel calmer. And that's the, I guess, the irony bolo, yeah, strangeness bolo of the martial arts, because remember in the Shaolin temple, you know, all those monks, they are so freaking calm. और क्या उन्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आता? दे आर लाइक द एपिटोम ऑफ कुंग फू. सबको आता है, छोटे छोटे बच्चों से लेके. जब फैंटास्टिकली जब वो खाता करते हैं, यू नो. Again, I'm getting distracted with the nostalgic factor of karate. But yeah, like I said, this was the entire concept of Karate Kid. So, like I said, Karate Kid के मूवी में एकदम लास्ट में क्लाइमैक्स सीन में टूर्नामेंट होता है. टूर्नामेंट में ऑब्वियसली इट्स हीरो वर्सेस विलन, डेनियल लारूसो वर्सेस जॉनी लॉरेंस. डेनियल लारूसो को ट्रेन किया है उनके मास्टर ने, उनके सेंसेई ने, मास्टर मियाजी. एंड जॉनी लॉरेंस को ट्रेन किया है जॉन क्रीस, जो उनके सेंसेई हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ गुड टीचर, ये इसका भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है इस मूवी में, इस टूर्नामेंट में. दैट सेंसेई मियाजी जो बहुत ही काम कंपोज्ड हैं, जो आपको फाइट तो सिखाते हैं बट आपको ये भी सिखाते हैं कि जाके लड़ो मत, यू नो. आप सामने वाले को एकदम चकनाचूर मत कर दो. जस्ट यूज दिस एज अ स्पोर्ट, एंड जब ज़रूरत पड़े टू हैव अ वॉर, सामने वाले को बस इतना ख़त्म करो कि वो मार ना पाए, जान से नहीं मारना. और यहाँ पे जॉनी लॉरेंस जो हैं एंटागनिस्ट, उनके जो सेंसेई हैं, उनके जो टीचर हैं जॉन क्रीस थोड़े से आई गेस वायलेंट हैं, वो थोड़े से एग्रेसिव है. ही फील्स के सामने जो दुश्मन है उसको ख़त्म कर दो, यू नो, रियली ख़त्म कर दो. हाथ पैर तोड़ दो, नीस नाबूद कर दो. मतलब लड़ना तो दूर की बात है, खड़ा ना हो पाए, मतलब एक तरह से ख़त्म ही कर दो उसको. सो दैट्स प्रीटी हार्श, यू नो, एंड दैट्स हाउ जॉनी लॉरेंस बिकम्स. जॉनी लॉरेंस ऑल्सो ही बिकम्स बुली, वो लोगों को मारता पीटता रहता है. एंड दैट्स हाउ इट इज़. ऑब्वियसली डेनियल लारूसो विन्स बिकॉज ही इज़ द हीरो. किस तरह से लड़ाई होती है, ऑब्वियसली आई मीन यू डोंट नीड टू गेस कि किस तरह से लड़ाई होती होगी लास्ट के टूर्नामेंट में. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच. इनफैक्ट लास्ट का जो एक सीन है जब जॉनी लॉरेंस डेनियल लारूसो का एक पैर तोड़ देता है, तो वो जो एक निंजा स्टाइल से स्पाइडर किक जिसे कहते हैं, वो किक मारता है. ब्यूटीफुल सीन, वो बहुत ही अच्छी तरह से शॉट किया गया है. एंड अगेन आई एम गोइंग बैक टू द नॉस्टैल्जिक फील. बट या ये इनफैक्ट ये जो क्लास सीन था किक का, ये यूज हुआ था आपके इस रीमेक में भी, जहाँ पे जेन स्मिथ, विल स्मिथ के बेटे एंड जैकी चैन ने एक्टिंग करी थी. सो ऑल इन ऑल दिस वॉज द स्टोरी ऑफ Karate Kid, the concept of Karate Kid, how it translates the story of the season Cobra Kai. जॉनी लॉरेंस, जो मैं एंटागनिस्ट की बात कर रहा था, जॉनी लॉरेंस के जो सेंसेई थे जॉन क्रीस, उनका अपना डोजो था. डोजो इज द एरिया जहाँ पे आप मार्शल आर्ट सीखते हो. इट्स लाइक योर ट्रेनिंग स्कूल ऑफ कराटे. वो डोजो का नाम था कोब्रा काई. सो कोब्रा काई वॉज अ स्कूल और द ट्रेनिंग सेंटर डोजो जहाँ पे जॉनी लॉरेंस जॉन क्रीस से कराटे सीखता था. मिस्टर मियाजी और सेंसेई मियाजी का कोई इस तरह से डोजो का नाम ही था बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू बी अ टीचर एज सच. ही जस्ट सॉ द पोटेंशियल इन डेनियल लारूसो एंड ही taught him a lot of things beyond martial arts. So as such उनका कुछ डोजो नहीं था. वो खेतों में वो सिखाते थे through you know, not just through kata or not just through the regular orthodox or conventional karate steps. जैसे बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, and it's not a spoiler, it's an interesting scene that रोज़मर्रा की लाइफ में आप किस तरह से अपने बॉडी मूवमेंट्स करते हो, उसको इस तरह से अपने अंदर रम जाना कि जब वो मार्शल आर्ट्स में यूज़ होगा सेम मूव, सो आपका वो एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा. आई मीन दैट इज सो इंटेलिजेंट. जब वो सिखा रहे होते हैं, ऑब्वियसली डेनियल लारूसो जो प्रोटैगनिस्ट है, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि आप मुझे क्या कर रहे हो. जैसे एग्जांपल आप
आपके जो फेंसेस हैं, वॉल्स हैं, उसकी पेंटिंग करो। तो पेंटिंग आप कैसे करो, लाइक टॉप बॉटम, लाइक दैट यू विल पेंट। आपको ऐसे ही करते रहना पड़ेगा ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक, 10 दिन तक। सेंसेई मियाजी डैनियल लरूसो को इसी तरह से पेंट कराते हैं। एंड सिमिलरली कार के जो विंडशील्ड है उसको साफ करने के लिए आप ये सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आप उसको साफ करोगे। ऐसा बोल दिया था कि ऐसे ही करना है, इसके अलावा और किसी तरह के हैंड मूवमेंट्स नहीं करनी फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन। डैनियल लरूसो वाज लाइक, आई एम हियर टू लर्न कराटे और आप मुझसे क्या करा रहे हो। So initially, yeah, he got frustrated, but later when he actually was into the training for martial arts, for karate, he learned that this is how you block the movement, the cleaning the windshields, this circular motion. This is the action to block when someone punches you, someone throws an attack. This is the action you do to block. और वो आपके विंडशील्ड साफ करते करते जो प्रोटैगनिस्ट डैनियल लरूसो, उसके ये इतना रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया था कि एकदम फटाफट से वो रोक लेता था। एंड सिमिलरली ये जो एक्शन है, इससे वो एकदम से वो ब्लॉक करता था जब हाई पंचेस लो पंचेस होते थे। सच इंटेलिजेंट, और ये ऑफ कोर्स ये सेंसेई के या इस मूवी के हिसाब से जो सेंसेई मियाजी हैं उनका ये थॉट प्रोसेस था कि रोज़मर्रा की लाइफ में आप किस तरह से मार्शल आर्ट्स को अपने अंदर इस तरह से बसा लो कि आपके वो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। सो कमिंग बैक टू कोबरा काय अगेन, मैं बार बार नॉस्टैल्जिक फील में कोबरा कराटे किड में चला जाता हूँ। बट या कोबरा काय was the dojo for Johnny Lawrence. What happens after 30 years of Karate Kid tournament? उस टूर्नामेंट के बाद obviously it's like 30 years. Daniel LaRusso is an established businessman, car dealer, and उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं। एंड इधर जॉनी लॉरेंस का एक बेटा है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप विथ बेसिकली ये उनकी कोई वाइफ नहीं है, उनका अपना कोई ठिकाना नहीं है जॉनी लॉरेंस का। एंड जॉनी लॉरेंस इज बेसिकली वेस्टिंग हिज ओन लाइफ। मास्टर मियाजी जिन्होंने एक्टिंग करी थी, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। सो उनको कोबरा काय के किसी भी सीरीज में, सीजन में, एपिसोड्स में नहीं देखा गया। जो देखा गया है दैट इज द क्लिपिंग फ्रॉम द ओरिजिनल 80s कराटे किड मूवी। ह्यूज रिस्पेक्ट, RIP टू दैट गाय। मैंने कराटे किड जो मुझे याद है, मुझे मास्टर मियाजी उन्हीं की वजह से याद है, एंड उन्हीं की कोचिंग टीचिंग की वजह से याद है। सो हाउ डैनियल लरूसो क्या उनकी लाइफ में जॉनी लॉरेंस दोबारा आते हैं। जॉनी लॉरेंस डिसाइड्स कि उन्हें कोबरा काय का ये डोजो दोबारा शुरू करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लिप है, नॉट एग्जैक्टली हीरो विलन काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जो विलेन हमारे मूवी में था जॉनी लॉरेंस, ही बिकम्स द प्रोटैगनिस्ट इन द कोबरा काय सीजन। एंड वो किस तरह से अपना डोजो तैयार करता है, कोबरा काय बनाता है, लोगों को ट्रेन करता है। एंड ही रियलाइजेस दैट जो उनके सेंसे ने, जॉन क्रीस ने सिखाया था, दैट वाज बैड। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मे बी द वे डैनियल लरूसो को ट्रेनिंग मिली थी, मे बी दैट वाज राइट। सो ही वांटेड टू टीच द किड्स ऑफ दिस जनरेशन karate the way he wants, not like how John Kreese taught him. And that's why he wanted to, एक तरह से reinvent Cobra Kai the way he wanted it to be. But कहीं ना कहीं डैनियल लरूसो के अगेंस्ट भी उनको एक राइवलरी थी, एक घृणा सी थी, एक दुश्मनी सी थी। Although Daniel LaRusso starting में दिखा दें कि he is open with it, and but later on obviously the rivalry strikes, how they meet, how they do it. उसके बाद जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, लाइक जो डैनियल लरूसो के की जो बेटी है, वो किस तरह से अब वो सीखना चाहती है, और किस तरह से जो जॉनी लॉरेंस का बेटा है वो डैनियल लरूसो से सीखना चाहता है, एंड सो फोर्थ। बट अगेन टूर्नामेंट होता है, यहाँ पे और नए कैरेक्टर्स आते हैं, यंग कैरेक्टर्स आते हैं, बुली करते हैं कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ मे बी दे आर गीक्स, दे आर नर्ड्स, और मे बी उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स की वजह से कि जिस तरह से वो दिखते हैं या जो भी हैं। हाउ दीज पीपल हु गेट्स विक्टिमाइज्ड टू द बुलिंग
किस तरह से कोबरा काय इन लोगों को ट्रेन करता है कि भाई तुम अपने आप को कम मत समझो, लर्न सेल्फ डिफेंस एंड जो बुली कर रहे हैं मारो उन्हें. सो या इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच. जिस तरह से ये पूरी वेब सीरीज डिज़ाइन की गई है, 10 एपिसोड्स हैं ईच सीजन में, दिया 3 सीजन तो 30 एपिसोड्स होंगे. आप सब देख सकते हो. ईच एपिसोड इज सो क्विकली मेड एंड जब आप देखोगे नेक्स्ट करना चाहोगे आप. स्पेशली जो लास्ट फिनाले है एंड लास्ट एपिसोड, जो फिनाले एपिसोड्स है ऑफ ईच सीजन 1 का 10th एपिसोड, सीजन 2 का 10th एपिसोड, सीजन 3 का 10th एपिसोड, इट मेक्स यू आस्क फॉर मोर. अभी जो 3rd सीजन खत्म हुई है 10th एपिसोड के बाद, एक ऐसे हाई पॉइंट पे आगे छोड़ा है. अब उनको क्लिफ हैंगर में तो ऑब्वियसली यू वांट टू नो सर्टेन क्वेश्चंस, सर्टेन आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, बट यहाँ पे इट्स नॉट क्लिफ हैंगर, इट्स समथिंग विच इज यू वांट फॉर मोर, कि ओह अब क्या होगा. इस तरह से एक मोमेंट आ जाता है ईच सीजन के बाद, ईच सीजन के फिनाले के बाद. सो all in all, it's a beautiful series, web series. Especially it's a nostalgic feel for those guys जिन्होंने ओरिजिनल 80s की कराटे किड देखी है. बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए तो खास तौर से ये रिकमेंडेशन है. अगर आपने वो मूवी नहीं भी देखी है, आप तो देखो, ज़रूर देखो वो मूवी दोबारा. बट अगर आपको वो मूवी नहीं देखनी, कोबरा काय से ही शुरू करनी है, तो आप शुरू कर सकते हो. ऐसे कोई you won't really miss a thing, but definitely if you have watched that 80s का Karate Kid, you'll definitely have this nostalgic feel, जैसा मुझे अभी हो रहा था. आपको कंटिन्यूसली वो फील रहेगी, बिकॉज द गाइस जिन्होंने उस कराटे किड 80s कराटे किड में जो डेनियल लरूसो को रोल किया था, इस एक्टर ने, जिस किड ने, उस टाइम पे तो टीनेजर थे, 30 years बाद द सेम गाय, द सेम एक्टर हैड प्लेड डेनियल लरूसो इन कोबरा काय. सेम विद जॉनी लॉरेंस, सेम विद जॉन क्लीव्स, सेम गाइस आउट देयर जिन्होंने वो कोबरा का एक कराटे किड की मूवी करी थी. द गाइज हु प्लेड द कैरेक्टर्स इन द ओरिजिनल कोबरा कराटे किड, they have played the same characters after 30 years in Cobra Kai. It's such a beautiful feel to see them again. Amazing series. Do watch it. In fact, मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया है, they all loved it. आप भी ज़रूर देखिए and let me know कि how did you like it. कोबरा काय आपको पसंद आया नहीं आया, और आपने कराटे किड देखा था या नहीं देखा था इसके पहले. डू शेयर योर कमेंट्स एंड ओपिनियंस बिलो एंड लेट मी नो कि और कौन सी मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में आप मुझसे बात करना चाहोगे. टेक केयर, पीस.